as you know, in the last lecture, we have seen the Einstein model for the lattice with capacity. So here today, we are going to see the third article, that is the device model of lattice with capacity. Since from the last few days, we were discussing that the lattice, that means solid, it possesses a certain expression for the heat or heat capacity. Beginning, first one, we have seen the classical model, that is Dewey and Petit's law. Then we have seen the Einstein model. And after having seen the Einstein's model for the lattice heat capacity, the another type of model in which the some discrepancy of the Einstein's model has been removed is called as device model for lattice heat capacity. Now, what is the difference between the Einstein's model and the Debye model? So the difference between the device model and Einstein model is that in Einstein model, it is considered that a single particle or the atom, which was the one of the constituent of the lattice, is a vibration of that single atom is with a single frequency, and he has assumed that atomic vibrations are independent of each other. Debye, in this case, Debye considered that vibrational mode of crystal as a whole vibrational spectrum of the solid consisting of large number of frequencies. That means in case of Einstein's model, the frequency of vibration of the single atom was considered with a single frequency. सेम फ्रीक्वेंसी was there, that means पूरे के पूरे एटम एक सिंगल फ्रीक्वेंसी के साथ जो है तो वाइब्रेट कर रहे थे, जबकि डिवाई का ये नजरिया है, डिवाई का ये जो है तो assumption है कि in case of the crystal lattice, the vibrational mode of crystal as a whole vibrational spectrum of the solid consists of the range of frequencies. Another one, that because what is happened, because the atomic oscillations, that means the oscillations by which the atoms are vibrating in case of the lattice are under the field of force of large number of vibrating atoms. यानी कि हर एक एटम ये भी वाइब्रेट कर रहा, इसके बाजू का भी वाइब्रेट कर रहा, उसके बाजू का भी वाइब्रेट कर रहा, यानी कि इसकी वजह से जो है तो एक लार्ज फोर्स ऑफ वाइब्रेशन तैयार हो रही है. Therefore, the atom does not vibrate independently. Atoms have collectively as a system of coupled harmonic oscillator the number of vibrational modes unit frequency, that is called as the density modes, or you may denote this density mode by nu. So now our intention in this particular article is to determine the density of this vibrational mode of crystal, treating that it is a continuous medium, that entire atoms in a solid or in a lattice are continuous medium. So now consider that there is a one-dimensional continuous string. In order to understand this behavior of atom in case of lattice, according to the Debye model, let us consider that there is a string, धागा जिसको हम कहते हैं, there is a string of the length L. nth लेंथ की एक स्ट्रिंग है, धागा है, उसके ऊपर जो वेव पैदा होते हैं उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे. So let us consider one dimensional continuous string of length capital L, suppose. Then ends of the strings are fixed at the two ends are fixed in this way, and string is set into vibration. यानी दोनों बाजू उसके फिक्स है और बीच में जो है तो कुछ इस तरह से जो है तो उसकी क्या हो रही है, वाइब्रेशन हो रहा है. अगर आप देखें तो फर्ज करेंगे यहाँ पर ये दोनों बाजू फिक्स है और ये इस तरह से जो है तो उसका वाइब्रेशन हो रहा है. Such type of string you can say that this is the length of the string in this way. Then what happened when it is vibrating or it is set into the vibration? Then at that time displacement vibration बोले तो फिर बात आई displacement की, फिर बात आई velocity frequency की. So let us consider that u x of t, where u is the function of x and t, with the displacement of the string at any point. Displacement of the string at the any point or any instant t, यानी कि x इसका displacement है, x t उसका time है. Then if it is so, but what is this? This is the expression. This is the expression, and you can found that this is the wave equation, isn't it? And therefore this wave equation, it is given by d2u by dx square is equal to 1 upon cs square into du by dt square, where cs is the velocity of the wave in the string. So solving this equation, now u, it is the displacement of the string. In order to understand the vibration, in order to understand this the vibration of that particular wave
or in order to understand the vibration of the atom in the lattice by considering that it is the polar spectrum, we have considered that a wave which is produced on the string, एक धागे के ऊपर जो उसके धागे के दोनों सिरे बंधे हुए हैं और बीच में जो वेव इस तरह की पैदा होती है, उस वेव के अंदर अगर डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन अगर हम निकालें तो वी नो दैट द वेव इक्वेशन इन दैट पर्टिकुलर केस is equal to dou 2u by dou x square is equal to 1 upon cs square into dou u by dou t square, where this u is the displacement and this dou has come because it is a partial derivative. That means u, which is the displacement, is the function of displacement x at position x and it is also the function of time. इस वजह से इन्हें u के साथ भी इसका डेरिवेटिव निकला है, t के साथ भी इसका डेरिवेटिव निकला है, where cs is the velocity of the wave in this t. And when we solve this equation by our regular method in case of mathematics, then solving this equation for u, we get the equation of the standing wave, that is the stationary wave, which is of this type. ये जब इसको सॉल्व करेंगे दो वक्त इंटीग्रेशन लेकर तो हमको दो u के बजाय u की एक्सप्रेशन मिलेंगी, मतलब u क्या है समझेगा, और हमको मालूम है कि u की इक्वेशन जो सॉल्यूशन से आती है u of x is equal to a sin n pi x upon l into cos of 2 pi nu 2. This is the expression for the stationary wave. So you can found that where n is the positive integer, it is greater than or equal to 1. Lambda, we now know it is the wavelength and frequency is nu. Therefore, lambda it is equal to 2l upon n. This is simple equation. Since क्यों? क्योंकि l is equal to n lambda upon 2 and frequency nu n, it is should be equal to cs upon lambda n by our regular equation. Therefore, lambda n is equal to this one. Therefore, cs is equal to n cs upon 2l. This is equation number 3. Are you getting my idea? Yes, sir. थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा मैथ होने की वजह से, लेकिन कल नेक्स्ट टाइम कब पीरियड लेना है बता देना मुझे, क्योंकि लास्ट आर्टिकल इसके बाद रह जाता है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन आई है डिस्प्लेसमेंट की, जो फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं डिवाई जो है, तो इससे पहले के गुज़िश्ता पीरियड में अगर आप होंगे तो हम वहां पर बात कर रहे थे आइंस्टाइन्स मॉडल। गुज़िश्ता कुछ दिनों से हमारा सारा मामला किसके ऊपर चल रहा है, किसकी बात करते जा रहे हैं हम, हमारा पूरी प्रोसेस किसकी चल रही है, entire thing we were discussing from the last few days is about the crystal. क्रिस्टल के अंदर जो एटम है वो एटम किस तरह से बिहेव करते हैं, सारी बात हमारी उसकी चल रही है, isn't it? अगर आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज कराऊं तो हम बात कर रहे हैं कि भाई क्रिस्टल के अंदर या लेटाइस के अंदर जो एटम है उनकी थर्मल कैपेसिटी या उनकी हीट कैपेसिटी कैसे, यानी कि उनके अंदर हरारत को रखना, हरारत को समाना, कब मेल्ट होना, कब जो है तो क्रिस्टल का टूटना, सारा उसकी जो है तो उसका टेम्परेचर वाला क्या मामला है, उसकी हरारत का क्या मामला है, कितनी हीट वो रख सकते हैं, तो हीट कैपेसिटी की बात चल रही है हमारी। तो हम उसको क्या बोलते हैं, किसकी हीट कैपेसिटी, लेटाइस की। लेटाइस बोलते किसकी, क्रिस्टल के अंदर जो लेटाइस होता है ना उसकी हीट कैपेसिटी, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या नाम से पुकारे हम, लेटाइस हीट कैपेसिटी। तो अभी लेटाइस हीट कैपेसिटी के ताल्लुक से तीन अलग अलग कंसेप्ट आए हैं। सबसे बिगिनिंग में आया था ड्यूलिंग एंड पीटर्स लॉ, उसने कुछ जो है तो कंसेप्ट दिए थे, उसने अपनी इक्वेशन दी थी कि भाई वो जो है तो टेम्परेचर को इंडिपेंडेंट है वगैरह, मगर उसके अंदर देखे थे कि भाई हाई टेम्परेचर को तो ये बात लागू हो रही, लेकिन लो टेम्परेचर के अंदर ये बात साबित नहीं हो रही। फिर उसकी जो है कमियों को पूरा करने के लिए अगले कुछ सालों में जो है तो आइंस्टाइन का मॉडल आया। आइंस्टाइन ने क्या बोला, उसने अपना कंसेप्ट रखा, कंसेप्ट में यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन तो बाद में बात करेंगे। कंसेप्ट में उसने क्या बोला आइंस्टाइन ने कि एटम, क्रिस्टल के अंदर जो एटम है जो अलग अलग कोनों पे और अलग अलग मुकामात पे है, वो अपने मीन जगह पर क्या करते, बोल रहा वाइब्रेट करते, वो अपने मीन पोजीशन पे क्या करते रहते, वाइब्रेट करते रहते, और इनके वाइब्रेशन जो है तो इंडिपेंडेंट है। हर वाइब्रेशन, हर पार्टिकल का वाइब्रेशन या हर एटम का वाइब्रेशन को बाजू से कुछ लेना देना नहीं, इंडिपेंडेंटली मूव करते, सबकी अपनी सिंगल फ्रीक्वेंसी है। और ऐसी सूरत में क्रिस्टल के अंदर का एटम कुछ इस तरह से बिहेव करता कि हर एटम को अब हम क्या नाम से पुकारते, हार्मोनिक ऑसिलेटर, और उसने अपना कुछ एक्सप्रेशन दिया। लेकिन उसके अंदर भी देखिए कि कुछ खामियां पाई गई। हायर टेम्परेचर पर यह बात सही है, लेकिन लोअर टेम्परेचर पर इतनी हीट तो कभी दिखती नहीं, लेकिन फिर भी एटम जो है तो स्टेबल है। लिहाजा इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिस्क्रिपेंसी इन केस ऑफ द आइंस्टाइन मॉडल, दिस डीबाई मॉडल हैज कम इनटू द एग्जिस्टेंस। और डीबाई ने भी कुछ कंसेप्ट अज्यूम किए, कुछ अपना नजरिया रखा, और उसने अपने नजरिए में आइंस्टाइन से थोड़ा सा अलग से बिहेव ये किया। उसने माना कि हाँ एटम जो है अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते,
एटम जो है तो इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट करते हैं, लेकिन उसने ये बोला कि एक फ्रीक्वेंसी नहीं है बल्कि ये पूरा ओवरऑल स्पेक्ट्रम है, बल्कि पूरे एटम्स क्रिस्टल के अंदर कुछ इस तरह से बिहेव करते हैं कि पूरे एक फोर्स, एक पूरा स्पेक्ट्रम, एक पूरी जो है तो चीज तैयार होती है। उस बुनियाद के ऊपर उसने कुछ अपना मैथमेटिकल जो है तो नजरिया पेश किया है। हो सकता है कि समझने में आपको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आए, क्योंकि ये मैथमेटिकल कंसेप्ट ज्यादा है, और दूसरी बात ये है कि आई थिंक यू आर नॉट प्रेजेंट इन द लास्ट पीरियड, देयरफॉर यू आर हाईली advised to go through the videos of my last 2-3 lecture so that you can get something। मैं ये तो नहीं कहता कि सबके सब आपके समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ हद तक आपके समझ में आ सकता। मेरा इंटेंशन आज पीरियड रखने का यही है कि कल और आज और कल ये 2 दिन में अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्रोबेबली दिस इज द लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो स्पेक्ट्रम जो दिखाई देता है वाइब्रेशन का, स्पेक्ट्रम कब दिखता है? जब ऐसा करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो हम क्या, अब क्या फर्ज करके चल गए कि क्रिस्टल के अंदर जो कोने कोने में हर एक मुकाम पे, मुख्तलिफ मुकाम पे जो एटम्स बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? बोलिए, अपने पोजीशन पे ऑसिलेशंस ऑसिलेशन कर रहे हैं, जिसको वाइब्रेशंस बोलते हैं। और अब वो आइटम को अब हम एटम बोल के नहीं पुकारते, बल्कि हम उनको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पुकारते हैं। हालांकि हकीकत में उन्होंने कौन है? एटम है। जैसा सोडियम क्लोराइड में सोडियम एटम, क्लोरीन एटम, सोडियम एटम, क्लोरीन एटम, सोडियम एटम, क्लोरीन एटम, ऐसा सबका पीरियोडिक अरेंजमेंट सोडियम और क्लोरीन का बन के क्या बना हुआ है? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल या सोडियम क्लोराइड लेटाइस। लेकिन वो लेटाइस के अंदर सोडियम और क्लोरीन ये नजरिए के तहत क्या कर रहे हैं? अपने मीन पोजीशन पर मुतवातिर ऑसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। और उनके ऑसिलेशन कैसे है नेचर में? सिंपल हार्मोनिक है। इस वास्ते अब आप एटम को हम एटम के नाम से नहीं पुकार रहे गुज़िश्ता 2-3 पीरियड से, बल्कि हम एटम को क्या के नाम से पुकार रहे? हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्यों बाबा हार्मोनिक ऑसिलेटर बोल के पुकार रहे? क्योंकि ये दोनों के नजरिए के तहत, आइंस्टाइन और डीबाई के भी नजरिए के तहत, ये एटम अपने मीन पोजीशन पर क्या करते जा रही जी? हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहे, सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन कर रहे। लिहाजा सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन से जुड़े हुए जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी जो है तो अवामिर है, सबके सब किसको लागू कर रहे हैं? हम एटम को लागू कर, कि भाई उसको वेव है, उनकी हरकत करने से वेव जनरेट होती, वेव जनरेट हुई तो फोनोन तैयार होता। सारी बातें हम किसकी करने लग गए? अब सिंपल हार्मोनिक मोशन से जुड़े हुए कंसेप्ट अब हम इसके अंदर लागू कर रहे हैं। भाई वेव जनरेट होती, वेव जनरेट हुई तो फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट रहता, उसको फ्रीक्वेंसी रहती, उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहती, उसको एनर्जी रहती। सारी बातें जो है हम किसकी करने लग गए? अब एक पार्टिकल जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, जो हमें क्लासिकल मैकेनिक्स में 11th 12th या फर्स्ट ईयर में देख कर आए हैं। So all the concept and all the terms which are associated with a particle which is performing the simple harmonic motions are now we are applying to the atom, which is no doubt जो कि एटम है, किसका है? सॉलिड का है, लेटाइस का है, अपने मुकाम पर है। लेकिन इस नजरिए के तहत क्या कर रहा है? वो अपने मीन पोजीशन पर सिंपल हार्मोनिक मोशन ओबे कर रहा है या परफॉर्म कर रहा है। लिहाजा जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, जब ये वाइब्रेट करेगा, ये वेव को जन्म देगा, और वैसी सूरत में ड्यू टू दिस वन स्पेक्ट्रम विल बी फॉर्म। स्पेक्ट्रम नीचे ऊपर करने से क्या होगा? एनर्जी का एक स्पेक्ट्रम तैयार होगा। एंड द स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विडिस्टेंट लाइन, ऐसे ऐसे लाइंस का एक स्पेक्ट्रम को दिखाई देगा। एंड स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम्स इन केस ऑफ द डीबाई मॉडल इज इक्वल टू, और इट विल बी ऑफ दिस टाइप। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम उसको बोलेंगे हम। फ्रीक्वेंसी का कम और ज्यादा होने का जो स्पेक्ट्रम रहेगा, इट इज ऑफ दिस टाइप। लाइन स्पेक्ट्रम विल बी ऑब्टेन्ड, इजंट इट? और उसका एक्सप्रेशन अगर हम निकालना चाहे, फिर इस इक्वेशन को यहाँ पर हम जाए तो n is equals to 2L upon CS into nu n, where nu n is the frequency। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, यानी कि फ्रीक्वेंसी का रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू लेंथ अगर हम लें, तो इट इज dn is equals to 2L। तो L तो कांस्टेंट है क्योंकि लेंथ है स्ट्रिंग की। क्योंकि और हमने यहाँ और एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं महदिया, कि हमने यहाँ पर क्या फर्ज किया है? पार्टिकल के वो वाइब्रेशन को, जो एटम्स का जो वाइब्रेशन है, जिसकी वजह से ऐसी वेव पैदा हो गई, इस वेव को हमने किसके बराबर, किसके मुतमासिल समझ लिया? कि एक धागे के ऊपर, धागा रहता ना अपना धागा, उसके दोनों सिरे बंधे हुए हैं, और उसके अंदर जो ऐसी वेव पैदा होती है ना, आर यू गेटिंग? तो यस सर that wave is equivalent to the motion of these particles or these atoms in case of solid। यानी कि सॉलिड के अंदर एटम्स की वाइब्रेशंस और उसके अंदर पैदा होने वाली वेव जो कि दिखती नहीं, जिसको हम क्या नाम से पुकारते हैं? अगर आपको याद हो तो फोनोन। अगर आपको पहला आर्टिकल लेक्चर याद होगा
हमने क्या बोले थे कि एटम्स के अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करने की वजह से एक किस्म की वेव ट्रैवल होती, दैट वेव इज कॉल्ड एज व्हाट? फोनोन। फोनोन। तो वो फोनोन को या वो जो वेव तैयार हुई है उसके वाइब्रेशन को हमने उसको किसके इक्विवेलेंट या किसके मुतशाबिहत पकड़ लिया? अब उसके अंदर की जो वेव है हम उसको बोलेंगे वो वेव उसी तरह से जिस तरह से एक धागे के अंदर, एक धागे के दोनों सिरे बंद दिए हमने। अभी थोड़ी देर पहले आपके जो है तो इंटर से पहले मैंने एक ऐसी तस्वीर उतारी थी कि भाई यहाँ एक स्ट्रिंग है, यहाँ एक जो है तो कीला है, दोनों कीलों के बीच में हमने धागा बांध दिया ऐसा, और धागा बांधने के बाद इसके अंदर क्या करे, इसको ऐसा ऐसा कराए, ऐसा ऐसा कराए तो ऐसा फिरता कि नहीं है? तो ये क्या तैयार हुई जी? हाँ, क्या है ये क्या है माहिदिया? ये क्या है बेटा? वेव। जो है जो किसके अंदर तैयार हुई? एक धागे के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, जिसके कि दोनों सिरे फिक्स है। तो एक धागे के अंदर जिसके दोनों सिरे फिक्स है, जिस किस्म की स्टेशनरी वेव जन्म लेती है, वो वेव के अंदर जो जो चीजें लागू होंगी तकरीबन वही कंसेप्ट जो है तो हम किसको लागू कर रहे हैं? एटम्स के स्टेशनरी वेव को, जो कि अपने सॉलिड में रहकर क्या कर रहे हैं? किसको जन्म दे रहे हैं? अपने वाइब्रेशन की वजह से एक वेव को जन्म दे रहे हैं। तो द वेव जनरेटेड बाय द कंटिन्यूअस ऑसिलेशन ऑफ द या वाइब्रेशन ऑफ द एटम इन दिस लैटिस ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ डिवाइन is considered to be analogous, यानी कि मुतशाबिहत रखती है, analogous to the wave which is generated on a string which is fixed at the two end, and that's why using that one we have obtained this much equation, and that equation we are calling in this way, that is it will be of this type, isn't it, where n is equals to dn. अब यहाँ पर l इसकी लेंथ उसकी कांस्टेंट है, लिहाजा we can see that dn is equals to 2l upon cs into d du into d nu, and when we will see this one particular equation, this is the possible mode of vibration in the frequency. अब यहाँ पे सिंगल वेव के लिए चाहा था डी, तो अब अपने को अगर 3 डायमेंशनल में करना है एक्स वाई जेड में, क्योंकि हमने क्या बोले हार्मोनिक ऑसिलेटर कितने डायरेक्शन में हरकत कर सकता, कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? एक्स वाई एंड जेड। तो 3 डायमेंशनल में अगर बात करें तो हम ये पीछे जो इक्वेशन निकालेंगे, कौन सी इक्वेशन? dn is equal to 2l upon cs into du by dx, या ऊपर की इक्वेशन हम उसको काय में लिख सकते हैं 3 डायमेंशनल में? dou 2u by dou x स्क्वायर प्लस dou 2u by dou y स्क्वायर प्लस dou 2u by dou z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन cs स्क्वायर इनटू dou 2u by dou t स्क्वायर। ये x y z क्या है जी? सब पोजीशन कोऑर्डिनेट है, और t क्या है? ये टाइम कोऑर्डिनेट है। अब इसी इक्वेशन को अगर हम कुछ 2 नंबर के इक्वेशन के हिसाब से लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि u जो कि डिस्प्लेसमेंट है वेव का, जो कि एक्स वाई जेड और टी का फंक्शन है, u x y z t इज इक्वल्स टू, इसका सॉल्यूशन हमको मालूम है कि इट इज a sin n x पाई x अपॉन l sin n y 3 डायमेंशनल में होने की वजह से दिस मच, एंड इनटू cos ऑफ 2 पाई न्यू t। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट। वे है यहाँ पर n x n y n z जो आए हैं, these are the positive integer, these are greater than or equal to 1, इसकी कीमत एक तो 1 रहेंगी या उनसे ज्यादा रहेंगी। और अगर हम इक्वेशन नंबर 4 का इस्तेमाल जो डिफरेंट मोड्स के लिए है अगर वो यहाँ पर इस्तेमाल करें तो ऊपर की मंदर वाला इक्वेशन नंबर 4 जिसमें कि हमने एन एक्स निकाले थे, तो इट इज एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू व्हाट? इट इज 4l स्क्वायर अपॉन cs स्क्वायर इनटू न्यू स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 के तहत कहाँ इक्वेशन नंबर 4? दिस वन, 2l स्क्वायर इक्वल टू दिस मच। तो दिस विल बी द nx square plus ny square plus nz square is equal to 4l square upon cs square into nu square, and we can find that अगर ये इक्वेशन को हम इस तरह से लिखें, न्यू और लैम्बडा में जो एक्सप्रेशन है n upon 2l, that is 4l square upon lambda square, thus there are the 3 integers nx ny nz जो कि अलग अलग वेवलेंथ को हमको देंगे, और नंबर ऑफ पॉसिबल मोड जो रहेंगे फ्रीक्वेंसी के, या नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जिसको हम बोलेंगे, इट इज dn is equal to z of nu du in the frequency range from nu to nu plus d nu can be calculated। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अलग अलग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हमको दिखाई देंगे। इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए एक कैपिटल आर स्क्वायर एक कांस्टेंट ले लें तो यू कैन फाउंड दैट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे अगर लें तो ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4l स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन cs स्क्वायर, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। स्फीयर की इक्वेशन मालूम है ना? सर्कल की इक्वेशन क्या है जी?
स्फीयर, सर्कल, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। सर्कल की क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या फिर 0, सेंटर अगर जो है तो उसका ओरिजिन है। तो वैसा स्फीयर की भी एक इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है स्फीयर की? 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ द स्फीयर। Radius. तो उसी अंदाज में अगर हम देखें तो ये जो इक्वेशन नंबर 9 आई है, करीब करीब ये जो है तो किसकी जैसी इक्वेशन दिखती है आपको? इक्वेशन ऑफ स्फीयर ऑफ द वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर की, जिसको हम निकालते हैं v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें इसको, ये जो वॉल्यूम की एक्सप्रेशन है, क्या काय की एक्सप्रेशन है? एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, जैसे पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर लिखते हैं ना, तो वैसे हम स्फीयर का जो है तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर R cube. हाँ, इसके where r is the radius, v is the volume, 4/3 constant, pi 3.14। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव लें, इसको डिफरेंशिएट करें, v का dv बनाए, तो ये 4 तो जैसा क्या वैसा रहेगा, पाई में भी कोई तब्दीली नहीं आएंगी। अलबत्ता ये जो r स्क्वायर अपॉन ये है, ये हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन इंटू डी आर इंटू 3r स्क्वायर अपॉन 2, ये 3 कट गया, लिहाजा डेरिवेटिव क्या बनेगा? dv इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर। समझा गया डेरिवेटिव कैसा आया? ये देखिए 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, खाली वेरिएबल कौन है? किसका डेरिवेटिव निकलता? खाली वेरिएबल का। वेरिएबल कौन है? R cube. r क्यूब, तो यानी r वेरिएबल है, तो ये r क्यूब का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? 3r स्क्वायर r क्यूब बाय r निकलेगा, यानी कि ये 3 कट जाएंगे, लिहाजा इट इज r स्क्वायर इंटू फिर r का और डेरिवेटिव, क्योंकि उन्हें वेरिएबल है, लिहाजा r का डेरिवेटिव dr। So this is the number of modes present in the frequency range from nu plus d nu to nu should be the same as number of this one। लिहाजा यहाँ पर जो वॉल्यूम इंटरवल रहेगा वो v से v plus dv तक रहेगा, और उसकी रेंज रहेंगी रेडियस की r से r plus dr। And since each point occupies the average unit volume in the space, the number of points present in the volume dv of the spherical cell, that is equal to 4 pi r square into dr। And we found that all the points vibrating in the सॉलिड के अंदर पूरे के पूरे पॉइंट या लेटाइस के अंदर पूरे के पूरे पॉइंट जो वाइब्रेट करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी एक फ्रीक्वेंसी नहीं है, बल्कि उनकी फ्रीक्वेंसी एक रेंज में है। और जो कहां से कहां तक फिरती, कहां से कहां तक रेंज है उसकी, मिसाल 1 से 10 तक बोलते ना अपन, तो फ्रीक्वेंसी लेटाइस के अंदर जो एटम्स है, सोडियम क्लोरीन मिसाल के तौर पर, या जितने भी एटम्स ए बी सी है, ये सब अपने मीन पोजीशन पर क्या कर रहे? डीबाई के बोलने के तहत वाइब्रेट कर रहे। और इन वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी ये सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं है, सबकी फ्रीक्वेंसी न्यू 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 या न्यू वन नहीं है, बल्कि फ्रीक्वेंसी कैसा है? कुछ पार्टिकल्स न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ जो है तो वाइब्रेट कर रहे, कुछ न्यू 1 फ्रीक्वेंसी के साथ कर रहे, कुछ न्यू 3 फ्रीक्वेंसी के साथ कर रहे। लेकिन इसकी रेंज ऐसा नहीं कि बेहिसाब सबकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की रेंज पक्की है भाई, 1 से लेके मिसाल के तौर पर 10 तक, यानी कि ऑल द पार्टिकल्स या ऑल द एटम्स इन द सॉलिड्स आर वाइब्रेटिंग in the frequency range from nu to nu plus d nu, and they are lying on the volume of the octant of the sphere of radius r plus dr, and therefore the possible modes of vibration, यानी कि इन एटम्स का सॉलिड के अंदर जो पॉसिबल मोड है वाइब्रेशन के कितने हो सकते हैं? दैट इज dn is equal to z of nu d nu। और अगर हम उसको स्क्वायर की शक्ल में लें, दैट इज 1/8 4 pi r square into dr। और इक्वेशन 9 नंबर के तहत अगर हम लिखें तो r is equal to 2l u upon cs, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या सॉल्यूशन को जिस तरह से भी बना सकते हैं, z of nu du nu is equal to 1/8 4 pi, all these things mathematical equation। See mathematical equation, it is displaying on your screen, can you see the screen please? तो डिफरेंट वाइब्रेशंस जो रहेंगे उसके, कि अलग अलग वाइब्रेशंस अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ जो बनेंगे, और उनकी फ्रीक्वेंसी जो बनेगी 3 डायमेंशनल में कुछ इस टाइप की बनती हुई आपको नजर आएगी। तो इन जनरल इलास्टिक वे ऑफ प्रोपागेटिंग, यानी कि ओवरऑल डिस्कशन से हम ये बोल सकते हैं कि सॉलिड के अंदर जो एटम्स हैं, और एटम जो अपने जो है तो मीन पोजीशन पर जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ या एक रेंज न्यू से न्यू प्लस डी न्यू की फ्रीक्वेंसी के साथ जो वाइब्रेट कर रहे हैं, इसकी वजह से एक इलास्टिक वे प्रोपागेट हो रही सॉलिड के अंदर। सो वी कैन से दैट द इलास्टिक वे ऑफ प्रोपागेटिंग इन द सॉलिड आर ऑफ 2 टाइप्स, ट्रांसवर्स वेव एंड longitudinal wave, and frequency, each frequency there are the 2 transverse modes corresponding to the displacement,
perpendicular to the direction of propagation and longitudinal mode corresponding to the displacement along with the direction of propagation. लिहाजा इसको अगर मैथमेटिकली तौर पर लिखना है, इक्वेशन नंबर 8 को कुछ हम इस तरह से लिखते गए, अलग डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है z ऑफ न्यू ड्यू न्यू इज इक्वल टू 4 पाई न्यू 2 अपॉन ct अपॉन q प्लस 1 अपॉन cq, यानी कि c1 c2 को यहाँ से यहाँ तक हम इसको ले सकते, where ct c1 are the velocities of ct transverse or cl longitudinal wave. So with this one we will stop here today. If you want to ask any question you may please ask. एक आर्टिकल खाली इसका बाकी रह गया है, वो है Debye approximation. So may I continue and complete the lecture today or we will have to take the period on Thursday? थर्सडे को एक आखिरी आर्टिकल लेके बंद करेंगे या बीच में कभी तो भी ले लेंगे, ठीक है? और एक ही आर्टिकल रह गया है, so we shall stop here today. Remaining thing we shall see in the next period. That is most I will give the link. एक ही लेक्चर इसका लेना है, जैसा कि हमारी